ایز یوزل جو ہم کرتے ہیں کہ پہلا ہر بندہ اپنا انٹروڈکشن کرا دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تاکہ ایک دوسرے کو جان جائیں. کیا جی تو صحیح آپ اپنے سے شروع کر دیں. ماشاء اللہ. میں اپنے شروع کر دوں. اور کیا, میں تو آپ کے بارے میں جانتا ہوں. میزبان ہیں میں سب سے بیکار بندہ ہوں, سمجھے آپ. بیکار آپ کا تخلص ہے یا شاعری کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرا حساب ہے کہ ہر چیز میں میں نے ٹانگ اڑائی ہوئی. اچھا نادیہ, ویلکم بھائی. یہ نادیہ فرام مساگا. ماشاء اللہ, زبردست. تو السلام علیکم ایوری بڈی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نادیہ از مائی ڈاٹر, جن کو نہیں معلوم. جی. اور ٹو میٹ یو جی. میری ملاقات ہو اینی چکی ہے. اختر صاحبہ ہیں, شی از اے پوئٹس, اور یہ بڑے کیا کہتے ہیں پروگرام یہاں ارینج کراتی ہیں, کرتی ہیں. یہ تو جی میں نے ہر ایک کا بہت سنا ہوا ہے, اور مجھے امی کا بھی پتا تھا. شی آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جاتی تھیں, اینڈ شی ریلی انجوائے دی ایوننگ. اوہ یا, وہ تو میرے گھر پہ بھی آ چکی ہیں کافی مرتبہ, انہوں نے بہت انجوائے کیا. بہت صحیح بات ہے. بڑی اچھی کے علاوہ یادیں. جو ہے مریم طرائب صاحبہ ہیں, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. سمجھے, یہ اردو بھی لکھتی ہیں, انگلش بھی لکھتی ہیں, اور کیا کچھ نہیں کرتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے ارشد رشید صاحب ہیں, وہ ہیں کیا چیف آف اسٹاف ہیں اردو اکیڈمی کے. اس کے بعد جو ہے یہ اپنے رزاق بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ از اے ویری گڈ سنگر. اور ہماری ملاقات ہو چکی ہے, ہماری ان سے ملاقات ہو چکی ہے. کیوں نادیہ سے ملاقات ہوئی ہوگی. بالکل. ہاں, نادیہ سے بھی. جی جی جی. ہاں, دانش عامر ملک صاحب ہیں, یہ ہی از نیو ٹو اس, لیکن یہ ہے کہ تو ویلکم ٹو عامر صاحب. ظہور صاحب تسی کتھے ہو؟ غزالی صاحب جی نظر نہیں آ رہے, آپ تو نظر آ رہے ہیں. میں نے دو مرتبہ ٹرائی کیا ہے, لیکن ویڈیو اگر میری نہیں آ رہی تو اوکے, آئی ایم اوکے. چلیں ایز یو لائک. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. اچھا چلیے. اور جناب نگیش صاحب. نگیش نہیں, ناگیش کا ٹیکسٹ آ رہا ہے کہ وہ نہیں جوائن ہو سک رہا ہے. دکھ رہا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے لیکن وہ ہے نہیں. کیسے ہو گیا یہ؟ اس کو کب میں نے ابھی جو ہے اس کو ایک لنک دوبارہ بھیجا ہے. لیٹ ہم ڈو اٹ آن دیٹ. جی میں نے بولا ہے. جی ہاں. تو یہ آج جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ تو سیٹ اپ میں ہی لگ گیا. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, آدھا گھنٹہ لگ گیا تو کیا. ایسا ہوتا ہے کبھی یہ ایکچولی جو ہے ہمارا یہ پروگرام ایکچولی یہ ہے اوپن مائک ہے, اپنا جو مرضی چاہے جس کی جو ہے, بس ایک گالیاں نہ دیں, باقی سب کچھ کہنا. تو آپ غزالی صاحب آپ ایک باری باری دعوت دے دیں نا لوگوں کو, تو پھر جی تو لیٹ اس اسٹارٹ. جی تو اب میرے خیال میں کہاں سے شروع کروں؟ میرا خواتین سے شروع کیا جائے. ارے باپ, الفابیٹ آرڈرز میں کر لیں. ہاں اینی اختر کو کریں بھائی, بہت بڑی چیزیں اور ان کو بہت بڑی چیز. دیکھ لیں اتنے بڑے برج پہ لٹکی ہوئی ہیں. میرے پاس آنیسٹلی مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. خالد صاحب نے آپ کچھ بھی کہہ دیجیے. جی کچھ کہہ دیجیے, کوئی فرق تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اسی فون میں ہے. اچھا مسئلہ ایسے کیجئے, آپ لوگ شروع کیجئے, میں جب تک کچھ نکالتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں, میں آپ سمجھ گئی. ہمارا یہی ہوتا ہے, وہی یہی ہوتا ہے. ہاں نہیں, اب مجھے پتا نہیں تھا کہ مطلب میں سمجھا کہ آپ لوگ خالی چیک کریں گے کہ سب کے مطلب سر پہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں کہ, لیکن اب میں اپنا وہ نکال لیتی ہوں. اچھا میرا خیال میں خود اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں ایک دو شعر سناتا ہوں, اس کے بعد میں کسی کو پھر. ٹھیک ہے جی. یہ ایک شوکت فہمی صاحب ہیں, ان کے دو شعر ہیں. وہ فرماتے ہیں, بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی. بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی, سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. اور یہ دوسرا شعر ہے جس میں سب جان ہے ان کی. ایک عمر تک
एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। बहुत अच्छी, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। अब जनाब अली, मैं किससे मैं दरख्वास्त करूं कि कुछ कहें? रज़ाक भाई कुछ सुना दें आप। चलो मैं तैयार हूँ, मैं सुना रहा हूँ। चल रज़ाली साहब, जी जी, जो दूर दूर से आए हुए हैं, टाइम जोन भी है, से पहले कहें उन्हें नींद ना आ जाए ना। नहीं जी, मलिक साहब कितने नहीं जाने, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ना करो। भी है फिर अभी जाके कॉफी बनाता हूँ। ये हमारे खालिद साहब जो हैं ये भी मलिक हैं जी, ये लिखते नहीं है अपने नाम के साथ जी। अच्छा जी रज़ाक भाई। सही साहब, आपकी आवाज कट रही है, जब आप बोलते हैं तो आवाज कट जाती है। अच्छा yeah, I don't know, it's me, I think it's my phone or something, so okay, thank you रज़ाक भाई। फैज अहमद फैज की नक्शे फरियाद सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई गलती हो तो माजरत चाहता हूँ, कोशिश करूंगा ऐसे तरन्नुम। अच्छा ठीक है, चले सुना ले। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आप से दिल लगा के देख लिया, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप से दिल लगा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, वो मेरे हो के भी मेरे न हुए, वो मेरे हो के भी न मेरे हुए, उनको अपना बना के देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, आज उनकी नजर में कुछ हमने, आज उनकी नजर में कुछ हमने, सबकी नजरें बचा के देख लिया, की नजरें बचा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा ख्याल में ये आमिर मलिक साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ ऐसे एनीथिंग, ये देखिए हमारा ओपन माइक प्रोग्राम होता है, इसमें जो मर्जी चाहे आप अगर ना कहना चाहता हूँ सर, इंट्रोडक्शन है, आज स्किप करूं तो नेक्स्ट टाइम चलें, एज यू लाइक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग अस, इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है मैं अब ये क्या कहते हैं, अपने मरियम तुराब साहिबा अगर कुछ अगर ना फरमाएं।
जी अगर नहीं कहें आप उनको चॉइस। थैंक यू सो मच। असल में कल रात ही गजाली साहब ने कहा कि आपको कुछ कहना है, तो ऐसे तो आपको पता है कि लिखा भी बहुत कुछ है और आजकल एक पॉलिटिकली चीज़ों पे कुछ लिखती हूँ। तो मैंने जो मेरे एक बहुत ही पसंदीदा शायर हैं अशर साहब, जिनकी मशहूर आपने सुना होगा, उर्दू है मेरा नाम मैं गालिब की सहेली। तो यंग शायरों में आई थिंक इस वक्त अशर अहमद का कोई हम असर नहीं है, बहुत बहुत ही बुलंद पाए के शायर हैं। तो उनके कुछ मेरे पास इत्तेफाक से लिखे हुए शेर थे, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। इरशाद है, इरशाद। तो ये तो खैर हो गई कि उनकी उर्दू है मेरा नाम मैं गालिब की पहेली, मैं ज़ौक़ के आंगन में खिली बन के चमेली। तो वो बहुत खूबसूरत है और इंटरनेशनली वो इतनी वो मशहूर हुई है, उर्दू है मेरा नाम, उससे इनकी शोहरत आफाक पे पहुंच गई। लेकिन एक जो उसकी मुझे बहुत पसंद है वो है, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को हमने आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को हमने आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। हाँ, और बहुत खूबसूरत है ये, जो मेरी दिल को लगती है वो है, आज फिर हम पे खुली वुसअते सहरा हम पर। अब इस शेर की डेप्थ देखें कि कह रहे हैं कि आज फिर खुली वुसअते सहरा हम पर। अब सहरा कितना बड़ा है, उसकी वुसअत कितनी है, तो इतना ये खूबसूरत इसका शेर है। आज फिर खुली वुसअते सहरा हम पर, आज फिर हमें खाक उड़ानी आई। आज फिर खुली वुसअते सहरा हम पर, आज फिर हमें खाक उड़ाने आई, आज फिर मयस्सर हुआ माँ का आंचल हमको। जब ये बाहर जाते हैं और आज के भी बच्चों पे इन्होंने कहा है कि जब you're out of town and you're missing your motherland, तो he is relating motherland to his own mother. He is saying कि आज फिर मयस्सर हुआ माँ का आंचल हमको, आज फिर नींद सुहानी हमें आई। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक दो अशार और हैं जो उन्होंने लिखे थे। उसकी खुशबू मेरी शायरी में उतर आई है, वाह, की खुशबू मेरी शायरी में उतर आई है, बज़्म सी बज़्म है, रुसवाई सी रुसवाई है। बहुत अच्छी। कुछ इस तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कुछ इस तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एनी साहबा। हाँ जी। जैसे मैं कहा करता हूँ कि तो आप रेडियो भी करती रही हैं माशाल्लाह, और महफिलों को भी आप जगमगाती रही हैं यहाँ पे एरिया में बहुत अरसा तक। तो आपकी तो आवाज में, जैसे मैं पहले भी कहता होता हूँ आपको कि जल्द कुछ तो कहिए कि हम कहते हैं। आपने मुझे कहा था आपने 7 बजे इस बटन को दबाना है, आपने ये नहीं कहा था कि मुझे करना है। लेकिन अच्छा ठीक है, असल में सब कुछ इस पे याद आया मुझे, सैक्रामेंटो पे याद आया कि जब मैं फराज साहब को वहाँ लेके आई थी, मुझे सैक्रामेंटो का जिक्र याद आ गया। तो बड़ा अच्छा मतलब सिलसिला बन रहा था, फराज साहब पूरे मूड में थे, फैसले भी सुना रहे, वो लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे और लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो मुशायरे के 2 हिस्से रखे थे, इसलिए कि अकेले थे और शोरा इतने नहीं थे, मुकामी भी कोई नहीं था वहाँ से। यहाँ से हम पकड़ के बेचारे फारूक तरास को, बहुत ही शरीफ आदमी है, उसको गाड़ी में डाल के ले जाते थे हर जगह। तो जब वहाँ पे मुशायरा होता रहा, मुशायरा होने के बाद बीच में जब दूसरा दौर शुरू हुआ तो अचानक एक आवाज आई कि जलेबियां आ गई हैं जैसे तो ये मुझे सैक्रामेंटो के मुशायरे की बड़ी अच्छी बात याद रहती है। तो फराज साहब जी कर कि चले ऐसे करें, पहले गरम गरम जलेबियां खाते, शायरी तो होती रहती है। तो ये मुझे सैक्रामेंटो की बड़ी अच्छी याद है, बड़ी खूबसूरत याद है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी नज़्म है, ठहरिए, अब आपको सिर्फ आवाज सुननी पड़ेगी, समझिए आप रेडियो सुन रहे हैं क्योंकि सब कुछ जालिम फोन में सब कुछ है। बिल्कुल आवाज। अच्छा हाँ जी, तो ये एक बड़ी नज़्म है जो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए कि किसी भी हाल में जब मैं होती हूँ, चाहे लोगों को देखती हूँ या खबरें देखती हूँ या कोई ड्रामा या कोई भी, तो मुझे ये नज़्म हमेशा लगा कि हर एक के हवाले से कही गई है और इसमें किसी न किसी
किरदार या कहानी इस नज्म में नजर आती है और ये सबकी पसंदीदा है और सबने सुनी हुई है। तो आपकी इजाजत से खालिद साहब, गजाली साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। कमाल की ये आजकल क्वारंटीन में भी चल रहा है। खिज़ां की रुत में गुलाब चेहरा लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पर दिया जलाना जला के रखना जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। बहुत खूब, ऐसे वैसों से, जी बिल्कुल, ऐसे वैसों से ये होता है कि हमारी जिंदगी बड़ी जालिम इस हवाले से कि बड़े नाशुक्रे हैं हम। आप किसी से भी 10 अच्छी बात कहते हैं लेकिन वो उस बात का जिक्र करेगा जो आपने अच्छी नहीं कही होगी। जी तो बिल्कुल सही। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। कमाल ये है। बहुत खूब। किसी को देना ये मशवरा कि वह दुख बिछड़ने का भूल जाए। मशवरा देना सबसे आसान काम होता है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। कमाल ये है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना। वाह वाह कमाल ये। बहुत अच्छे। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए। शिकस्त खाए लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये। आखिरी हिस्से में है कि 1000 ताकत हो 100 दलीलें हो। 1000 ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये किसकी गजल है? ये किसकी गजल है? हाँ ये पढ़ी तो मैंने है। पढ़ने से आपकी अगर हो जाती तो फराज का तो पूरा दीवान आपका था। नहीं। फराज साहब के तो मैं एक चीज से माशाल्लाह उनकी 13 किताबें हैं। नहीं उनका नहीं है बिल्कुल, ये किसी पुराने शायर की है और मुझे बड़ी जुस्तजू है कि मुझे पता चले। और अगर आप में से किसी को पता चले मैं खुद भी असल में ढूंढ रहा हूँ कि ये है किसकी। पिछले 5-6 सालों से मैं इंतजार में हूँ और मैंने कोशिश की है। जी इसका जो बंद आपने जो पढ़ा था जी सड़क यानी रास्ते में या कांटे होते उसको उठा के रखना, ये अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा ये कुछ 2 हफ्ते हुए किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था ये, और मैंने ये सुना है पहले। तो मैं कोशिश करूंगा ये किसने भेजा और किसकी है तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा जरूर। और इसके बारे में दो नाम दिए जा रहे हैं तो अब 2 में से वो किसकी है अमानत, ये प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाम आप बताना पसंद करेंगी? जी 2 नाम कौन से हैं आपको पता है? एक तो जनाब उनका नाम है अदा और पूरा नाम नहीं पता है अदा, तो इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है और बस। लेकिन बताइएगा प्लीज, मेरे बहुत बड़ा एहसान होगा आप सबका। जी जरूर। उर्दू एकेडमी वालों का भी ये फर्ज बनता है कि वो तलाश करें नाम। जी बिल्कुल हम सबका फर्ज है जो भी उर्दू से मोहब्बत उर्दू एकेडमी देखे ना, उनकी तो मोनोपोली है ना उर्दू एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अपने राशि साहब हैं, एक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है यहाँ। बस आज से आपने ये फोन बंद करना है और अब आपसे अगली दफा तभी मुलाकात होगी जब आप नाम बताएंगे। सही है।
ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई सर। वो आपको मैं इज्जत दे रही हूँ, वो उन्होंने अभी मुझे बताया कि नॉर्थ अमेरिका का नाम आ गया। जी 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 जी। मैं इस तरह है, अब एक दो शेर मैं सुनाता हूँ और फिर इसके बाद जो है मैं अपने अरशद राशिद साहब ने तो मुझसे कहा था आई जस्ट अटेंड, तो अगर जनाब मैं अब भी यही कह रहा हूँ, मुझे सुनने ही दीजिए। चलिए तो मैं एक दो शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं खालिद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी शायरी सुनाएं। इनसे तो बहुत कुछ सुनना है, खरी खरी भी जी सुननी है। जी जी जी। ये जनाब ये अलिफानी बदायूं नहीं कहते हैं कि ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम, ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम, रहा ये वहम कि हम हैं सो ये भी क्या मालूम। और हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का, और एक मुहिम्मा है समझने का न समझाने का, न समझाने का, मुहिम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। दीवाने का। खालिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुछ मरहमत फरमाए। अब आप स्वेटर पहन लीजिए, ठंड हो गई है समंदर के किनारे। नहीं अभी हम लोगों को मास्क पहन के बैठना पड़ेगा। मैं कहने वाली थी खासतौर पे खालिद साहब, जो मैंने आपका जब फ्लायर देखा तो मैं अभी तक सोच में थी कि वो खातून मास्क पहने हुए या शर्मा रही हैं। जो फ्लायर मुझे समझ नहीं आया। बहुत सारी चीजें ना पे छोड़ देते हैं ना, यही तो क्या यही तो सैक्रामेंटो की बात हो रही थी, तो एक तो कहा था कि ये शेर पता नहीं किसके हैं। तो 11 में आवाज कट रही है सर आपकी। आप कुछ बेहतर है कि नहीं? जी बेहतर, शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू किया है ना, तो हमारे बुजुर्ग की बातें स्टेज पे आते हैं ना तो लोग गाना शुरू कर देते हैं उनको देख कर ही। तो जिक्र किया कि हम में ये अदबी महफिल शुरू करने वाले हैं, तो वो एग्रीकल्चर हो सकता है, कल्चर नहीं हो सकता है। दूसरे लफ्जों में कल्चर यहाँ है और अगली कल्चर दूसरी तरफ है। कल्चर तो ये आप सबको आवाज कट कट के आ रही है, सिर्फ मैं? ये मुझे भी कट के आ रही है। ये सब आवाज खालिद साहब की आवाज कट कट के आ रही है। खालिद साहब सॉरी, मुझे नहीं, सबको शिकायत है आपसे। अच्छा तो मैं शिकायत, मैं शादीशुदा मर्द हूँ, मैं शिकायतें सुनने का आदी हूँ। लेकिन आ रही कि कितना बुरा है मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं अब बेहतर है, वैसे अब बेहतर है। हाँ, जैसे ही आपने कल्चर से हटे तो आवाज बेहतर हो गई। क्या ना, कल्चर यहाँ है ही नहीं। ये घंटियां कौन बजा रहा है? ये टॉप हुआ है मेरे ख्याल में कोई। अच्छा ये सारा मेरे खिलाफ हो रहा है बस यही। तो दूसरा बात हो रही थी ना कि ये शेर किसके हैं, तो अरे हाँ देखा है ना कि हमारे होता है, तो एक हमने ये भी रखी थी क्या कहते हैं कि आईडी पढ़ दें, अगर किसी को मालूम हो ये किसकी। जोर साहब। यस सर। ये आवाज आपकी पीछे से आ रही है, लगता है पीछे से। नहीं मेरी, मैं जहाँ मैं बैठा हूँ कोई आवाज नहीं जा रही। जरूर साहब आज आप तो हो क्या गया कि इंजीनियर बनना है आप? आई डोंट नो, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा यार। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई एम ओके, बट यू हैव टू लिसन टू मी टुडे। नहीं अभी हमने आपसे भी सुनना है सारी ना मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आवाज तो आ रही है, और कैमरा आपकी तरफ से बंद है क्योंकि यहाँ से या मेरी तरफ से क्या, मेरा ख्याल
मेरे फोन में कुछ है, वो मैं फिर बाद में देखूंगा जी। चलो ठीक है, तो मेरी चूंकि पारी है तो इसके आप सबकी इजाजत के साथ एनी साहबा जी शाह नासिर काज़मी की एक गजल है। वाह वाह, बहुत खूब। कुछ शेर हैं जो, कुछ शेर सारे नहीं, जो आपकी नजर हैं खास तौर पे, इसमें लिए कुछ मैसेज भी हो, तो अर्ज है आपकी इजाजत के साथ के नियत शौक भर न जाए कहीं, उतर न जाए कहीं, वाह वाह, आज देखा है तुझको देर के बाद, हाय हाय, वाह वाह, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, वाह वाह वाह, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए, वाह वाह, और आरज़ू है कि तू यहाँ आए, फिर पीछे ना लग, तो ये कि तू यहाँ आए और फिर घर न जाए। गजाली साहब जी, नासिर काज़मी के शेर सुना रहे थे खालिद साहब, तो उस पे एक मुझे अगर आप ये इजाजत है तो एक शेर अचानक याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्या जी, आप 4 शेर सुनाएं, कोई बात एक ही है वो शेर, आज के हालात के लिए भी ये है। जी जी दिल तो मेरा उदास है नासिर, जी, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है, शहर क्यों साए साए करता है। सही बात है, सही 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 सूरत सही। तरीन अशार हैं नासिर काज़मी। जी जी जी, नहीं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है।